Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So I am making this video on a very serious issue, that is exam of IBPS PO on January 22nd, 2022 at 7:30 a.m. You all were waiting for the admit card, and IBPS released the admit card. After seeing the admit card, lot of comments are there how we will reach the venue. Exam should be postponed. Corona condition is worsening. Why IBPS is conducting the exam? These are all serious concerns. But at the same time, I will narrate certain things. Always keep in mind these things. First, if admit card is released, it does not mean exam will happen on January 22nd, irrespective of condition of the country. Okay, this is one thing. IBPS is doing its own act. The act is they have taken the exam, they have released the result, and now they have planned an examination. This is planning. The execution depends upon the emerging circumstances. Today is 10th. 1 week ago on 3rd, the condition was not all that bad. But in 1 week time, condition has worsened. Now from here, in next 12 days, condition may worsen or condition may improve. Nobody knows. Nobody knows whether the condition will worsen from here or the condition will improve from here. So they have planned. Does not mean that irrespective of bad circumstances, they will forcibly take an examination. No, this will not happen. It is a sensible organization. They will consult and discuss with various organizations. If safety measures are in place, then only exam will happen. So that is the role of IBPS. We need not unnecessarily plan campaigns, waste our energies on Twitter, on so many things. Nothing is required. You have to trust an organization who is conducting the exam. They always acted responsibly. They will also act responsibly this time also. But as a candidate, what is our role? Should we waste our energy in discussion of these things which is not in our control? Or we should do our role. Our role is focus on study. Always keep in mind your competitor is studying day and night without bothering these things. And if you are engaged in certain things like this, you are the loser, no other person. No one waits for another person. This is a world where everybody wants to grab the opportunity by defeating the another person. So my advice is don't waste your energies on the things which is not in your control. IBPS has planned certain things. Let's wait and see whether this planning can be executed on 22nd or some days after that. So there is no need of going into panic mode. Say the exams, those are postponed today. They also issued the admit card. And after issuance of admit card, those authorities felt the time is not conducive of conducting the exams. They have postponed it. So the condition of holding an exam or postponement may be known to us around 19th or 20th of January, not before that. So if you are running any campaign, putting your energies in any campaign, it is just waste of time and your energy. My advice is assume the date as January 22nd as a final date and hope that the conditions will improve, the atmosphere will be conducive to conduct the exam
so that you get the job. You should pray that and prepare for the exam. That is my advice. Rest is your choice. This is a channel of right advice at right time. I will not advise you to waste your energies on here and there. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। आप सब लोग एडमिट कार्ड का वेट कर रहे थे। आज एडमिट कार्ड आ गया। अब एडमिट कार्ड आ गया तो डेट क्या आई? 22 जनवरी 2022। टाइम आया 7:30 बजे सुबह सुबह और परेशानी शुरू हो गई। इतनी सर्दी और 7:30 का टाइम। आपको ये पता होगा कि बैंक इररिस्पेक्टिव ऑफ कोविड पीक वो फंक्शन करते हैं क्योंकि असेंशियल सर्विस है। ठीक है, तो ये बैंक में एंट्री का ही एग्जाम है। इसी सर्दी के अंदर सेना के सैनिक बॉर्डर पर खड़े बर्फीली तूफान में भी देश की रक्षा करते हैं। ये सब चीजें अलग हैं। इसमें मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा कि 7:30 का टाइम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 10 बजे करना चाहिए कि 12 बजे करना चाहिए, शाम को करना चाहिए। ये IBPS का प्रेरोगेटिव है। मेरा कहने का अभिप्राय जो सिर्फ इसके अंदर ये है कि जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार हमें क्या करना है और IBPS को क्या करना है। अब आपकी चिंता का मुख्य कारण क्या है कि कोविड की सिचुएशन वर्सन होती जा रही है। ऐसी सिचुएशन में हम एग्जाम कैसे देंगे? क्या आपको लगता है कि अगर स्थिति खराब होगी तब भी IBPS एग्जाम करवा देगा? क्या वो इररिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है? ऐसा नहीं है। जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी होती है उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसको अपना एक सिस्टम फॉलो करना होता है। उन्होंने प्री का एग्जाम लिया, उसके बाद प्री का रिजल्ट दिया और एक डेट निश्चित करी IBPS PO मेन एग्जाम की और उसके लिए आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया। अब क्या होगा? आज तारीख है 10। या तो यहां से हालात सुधर जाएंगे क्योंकि अगर हम 3 तारीख को जाएं तो उतने हालात खराब नहीं थे जितने आज हैं। तो एक हफ्ते में यदि एबनॉर्मली केसेस बढ़ सकते हैं तो एक हफ्ते में एबनॉर्मली केसेस घट भी सकते हैं, क्योंकि हम तो ये सोच रहे हैं ना कि बढ़ेंगे ही यहां से, पर ऐसा जरूरी तो नहीं है क्योंकि वेव्स आई हैं, केसेस बढ़े हैं फिर गिरे भी हैं। तो जो अथॉरिटीज हैं वो एक डेट निश्चित करेंगी। अब यहां से ये देखा जाएगा कि आज के बाद अगले 8-9 दिन के अंदर क्या परिस्थितियां बनती हैं। मेरा अपना मानना यह है कि IBPS सिचुएशन को रिव्यू करेगी 19-20 तारीख को। अगर उन्हें लगेगा कि केसेस इतने बढ़ चुके हैं कि इसमें संभव नहीं है एग्जाम कराना, तो वो इसके ऊपर कोई ना कोई पॉजिटिव डिसीजन लेंगे और एग्जाम को पोस्टपोन करेंगे। और अगर स्थितियां सुधर जाती हैं या ऐसे हालात होते हैं कि एग्जाम कराया जा सकता है तो वो एग्जाम कराएंगे। तो ऐसे में हम कोई भी कैंपेन चलाते हैं, कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं, सिर्फ हम अपनी एनर्जीज वेस्ट करेंगे क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि IBPS रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऐसा सच नहीं है। IBPS रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है और वो एग्जाम तभी कंडक्ट कराएगा जब डिफरेंट स्टेक होल्डर, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज उनको ग्रीन सिग्नल देंगे कि एग्जाम कराने के लिए समय उपयुक्त है, अदरवाइज नहीं कराएंगे वो। अब मान लीजिए हम अपनी एनर्जीज वेस्ट करते हैं, कैंपेन चला लें, ये कर लें, वो कर लें, तो क्या होगा? जो मेरा कंपटीटर है, जो शांत बैठा है, जो नजर नहीं आ रहा सोशल मीडिया पे, वो चुपचाप अपनी तैयारी कर रहा है और आप उलझ गए और एग्जाम 22 को हो जाएगा या किसी और तिथि को हो जाएगा। तो लूज कौन करेगा? आप। क्योंकि जब आपने ये एग्जाम पास किया है ना, तो अभी आप 10 में आए हो, इसमें से आपको 4 में आना है या 3 में आना है इंटरव्यू देने के लिए, और उसके बाद 10 में से 1 में आना है फाइनल नौकरी पाने के लिए। तो अभी आपने अपनी मंजिल नहीं पाई है, अभी तो सिर्फ आपको
उन्होंने संभावित कैंडिडेट्स के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। और यहां पर यदि आप अपने रास्ते से भटक गए तो आप बाद में बहुत पछताएंगे। तो मेरा आप लोगों को यह सलाह है कि आप डेट को डिस्कशन छोड़ दीजिए। अब उन्होंने एक एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया, उसके अनुसार आप अपने को साइकोलॉजिकली तैयार करिए एग्जाम देने के लिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। एग्जाम होने की स्थिति होगी तो एग्जाम होगा, और एग्जाम होने की स्थिति नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता आईबीपीएस जबरदस्ती एग्जाम करवाएगा। इसलिए इस चिंता को छोड़कर अपना मन पढ़ाई में लगाइए और व्यर्थ के कैंपेनों से बचिए। मैं किसी भी कैंपेन के हक में नहीं हूं, क्योंकि ये केवल आपकी एनर्जीज को वेस्ट करेगा। ये चैनल है राइट एडवाइस एट राइट टाइम, और मैंने काफ़ी सोच विचार करके आपके विचार पढ़ने के बाद ये वीडियो बनाने का फैसला किया है, जबकि मेरा पहले मन था कि मैं इसको सुबह बनाऊंगा। पर जिस तरीके से आपके कमेंट्स आ रहे हैं, आपकी चिंता बढ़ती जा रही है, परेशानी बढ़ती जा रही है, मुझे लगा कई लोगों को शायद रात को नींद ही नहीं आएगी, इसलिए मैंने ये वीडियो आज ही बनाया है ताकि आप शांत मन से अपने पढ़ाई में लग सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।